Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to learn nucleophilic substitution reactions in lecture 11. This is the series of reaction mechanism 2, or you can say GOC to General Organic Chemistry 2, where we are discussing all the topics of NCERT 11th and 12th of organic chemistry. All the reactions and all the concepts like SN1, SN2 we will discuss further lecture. We will discuss later on. Okay, so first of all we have to start nucleophilic substitution reactions. Today we will learn the solvent, nucleophilicity versus basicity. What is the difference between nucleophilicity and basicity? Like OH minus, which is basicity? How can we say which is base, whether it is base or whether it is nucleophile? It is both, but depends on the condition what will its position. Okay, and nucleophilicity order, and further we find the nucleophilicity order and leaving group order. Generally this is the important questions of the base in examination point of view. So we should firstly we will learn about the concept. Okay, then I will say trick to solve in question in 1 minute, in finally 1 minute. Okay, just let's start from the PDF. I have made the PDF notes. Okay, then starts nucleophilic substitution reactions. First of all, nucleophilic substitution reaction is the characteristic reactions of halide, characteristic reactions of halide. Okay, and its derivatives. In these reactions, a living group is replaced by nucleophile. So name the nucleophilic substitution reactions. देखो सबसे पहले पीडीएफ में चलते हैं. लिखा है characteristic reactions of halide in which the living group is replaced by the nucleophile. तो nucleophilic substitution reactions है, तो nucleophile क्या करेगा? लिविंग ग्रुप निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, इसीलिए नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ वी आर गोइंग टू द सॉल्वेंट. व्हाट इज सॉल्वेंट? देखो रिएक्शंस होते हैं, उसमें रिएजेंट होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, प्रोडक्ट. तो सॉल्वेंट इज लाइक अ हेल्पर. ओके, सॉल्वेंट इज लाइक अ हेल्पर. सबस्ट्रेट इज द विच हैव टू कोई भी सब्सटेंस है जो इसको हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, सबस्ट्रेट. और रिएजेंट इसको कन्वर्ट होने में मदद करता है, ठीक है. तो सॉल्वेंट दो तरह का होता है, पोलर सॉल्वेंट और एपोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट मतलब बेसिकल बात है कि पोलैरिटी प्रेजेंट है, और एपोलर सॉल्वेंट मींस नो पोलैरिटी, पोलैरिटी इज एब्सेंट. लाइक यू नो CCl4. ओके, you know the structure of CCl4. This is like that, and you will find the dipole moment is equal to 0, and if the dipole moment is equal to 0 then it is non-polar. ठीक है, तो ये नॉन पोलर है. इन द सेम वे CS2, इन द सेम वे बेंजीन. So these are the apolar solvent, and polar protic solvent in which the dipole moment is present. You know water, structure of water. This is like that, structure of water. As the polarity is does not cancel, means dipole moment does not is equal to 0. It's meant it is polar. So this is the polar. How can we identify on this way? We have learned in chemical bonding chapter of inorganic chemistry. So polar solvent is further divided into the polar protic solvent and polar aprotic solvent. Firstly, polar protic solvent में hydrogen is directly bonded to En atom. Hydrogen is not directly bonded to En atom. Basically more En atom. Okay, you can say the more En atom. Hydrogen is bonded to the more En atom, and then it is polar protic solvent. And aprotic solvent is with that hydrogen is not directly bonded with more En atom. And most important बात यह है कि सॉल्वेंट ओनली कटायन होना चाहिए. ये सॉल्वेंट सिर्फ कटायन को सॉल्वेट करता है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट करता है बोथ अनायन एंड कटायन को.
थोड़ा आगे लेक्चर में इसका डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब इसका तरीका है दोनों को पहचानने का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसको ऐसे पहचानते हैं जैसे वाटर है और आरओएच है। तो जो देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, सब में जुड़ा होगा और मोर ईएन एटम से, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन इज ए लेस ईएन एटम। तो देख लो, अगर कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है ना, तो वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर मोर ईएन एटम से जुड़ा हुआ है ना हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, सल्फर, इस सब से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो ये सब से तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ठीक है बात। चलो, अब ये सब नाम हमें याद रखना है। डाइमिथाइल एसिटामाइड डीएमए, ये डाइमिथाइल है, ठीक है। ये एसिटामाइड ग्रुप है, तो डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज फॉर्मामाइड, ठीक है। फॉर्मीन, फॉर्मीन यू नो, फॉर्मल्डिहाइड, this is formaldehyde and the hydrogen is present like that. Dimethyl formamide, this is formamide for like that, same. You can compare and learn. Dimethyl sulfoxide, sulfoxide but dimethyl, okay. Ether, ROR. So this type of we can make the conclusions and further we will learn, okay. Next, difference between nucleophilicity and basicity. We have to learn this sentence. What is nucleophile? Electron donating tendency of lone pair or negative charge to any other atom except H plus. तो अगर H plus के अलावा किसी दूसरे को एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर H plus को दे रहा है तो बेस हो जाएगा। बस सिंपल सी यही बात है। अगर H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस। अगर H प्लस को नहीं दे रहा तो न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि ये अपना OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन है, जो मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था कि OH माइनस कभी न्यूक्लियोफाइल होता है कभी बेस होता है, डिपेंड करता है कि क्या वहां पे सबस्ट्रेट दे रहा है, ठीक है। अगर OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल देन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा है और जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव जाएगा, ठीक है। OH माइनस और H प्लस जाके अटैक कर रहा है, एक्ट एज अ बेस। OH माइनस हियर एक्ट एज अ बेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो मैं टॉपिक का बात कर रहा हूँ, आज का मेन टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो फर्स्टली, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज बेटर देन पेयर। तो देखो, ये तो कहने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है, और इससे भी शॉर्टकट है, वो ज्यादा याद रखने वाली बात है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा होगा लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज हमेशा उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा बेटर डोनेट कर पाएगा। जो ज्यादा बेटर डोनेट होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, ठीक है बात। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। When negative charge is on same atom, अब देखो नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज देखा कि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में कंपेयर, नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है तो मोर एबिलिटी ऑफ चार्ज विल बी गोड इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादा एबिलिटी ऑफ चार्ज कौन होगा, मतलब किसके पास चार्ज का एबिलिटी ज्यादा होगा, जो अनायन लेस स्टेबल होगा। जो नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा उसके पास एबिलिटी कितना होगा, चार्ज का ज्यादा होगा। वो स्टेबिलिटी में जाना चाहता होगा या तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता होगा, ठीक है। तो लेस स्टेबल चार्ज, less stable negative charge is a good nucleophile. You have to remember this point. I am presenting the arrow, you have to remember this arrow point, okay. This is the example, OR minus, PH minus, RCO minus. This is the most stable because ERS, equivalent resonating structure, and you know equivalent resonating structure is more stable than the resonating normal resonating structure we draw in the earlier classes, and I thought, okay. when negative charge on different atom, पहले तो सेम एटम पे था, अब डिफरेंट एटम पे है, लेकिन सेम पीरियड की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज अगर लेस ईएन पे है तो मोर अवेलेबल होगा, हेंस गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर लेस ईएन पे होगा ना, तो लेस ईएन वाला तो इलेक्ट्रॉन कम देना चाहेगा ना, लेस ईएन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि जिसका ईएन ज्यादा होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखना चाहता है। इसका ईएन कम है तो ये कम रखेगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, डोनेट ज्यादा करेगा, ठीक है।
less En atom will donate more and more En atom will donate less, because more En atom is the hungry of electron. they they eat many electrons. Okay, this is the good nucleophile. Like that, less En atom, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. राइट टू लेफ्ट जाने पे En क्या होता है? राइट टू लेफ्ट जाने पे En increases and hence good nucleophilicity decreases. अगर नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम पे है, अगर सेम ग्रुप का है, पहले सेम पीरियड का, तो क्या देखते थे? तो पीरियड में क्या देखते हैं? लेस En, और ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज. तो अगर साइज स्मॉल साइज का होगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है. तो यहीं पे लिखो स्मॉल साइज गुड nucleophile only in that case when polar aprotic solvent is present. What? Only polar aprotic solvent is present. Listen, अगर मान लो अगर साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा होगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को डिसॉल्व करता है. एंड यू नो द साइज ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. Size is directly proportional to what? Z effective. Inverse of Z effective, and Z effective directly proportional to positive charge. लेकिन inverse of size is directly proportional to negative charge and inverse of positive charge. So size अगर ज्यादा होगा, नेगेटिव स्मॉल साइज होगा, तो डिसॉल्व क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा डिसॉल्व कर लेगा ना. ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है. Hence more electron density, so more available and hence good nucleophile. स्मॉल देखो, अगर फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, इसका साइज छोटा है. ठीक है, जैसे कि ये फ्लोरीन है. ठीक है, इसका साइज ज्यादा है. वहीं पे ये आयोडीन है, इसका साइज बड़ा है. तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली डिफ्यूज होगा, रैंडमली होगा, कहीं कहीं पे कम होगा. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा. यहीं पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं यहाँ पे, तो 5 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे लगेगा कि कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो लगेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ज्यादा डोनेट करेगा. तो इसका बेसिक सा फंडा यही है. तो क्या याद रखना है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, स्मॉल साइज, गुड न्यूक्लियोफाइल. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया तो क्या करता है? डिसॉल्व पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को. तो स्मॉल साइज, मोर सॉल्वेशन, लेस डोनेशन. अगर स्मॉल साइज हो जाएगा, अगर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिसॉल्व करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो स्मॉल साइज के कारण इसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ज्यादा सॉल्वेट करता है वाटर में. ठीक है, इसलिए इसका डोनेशन कम होता है एंड वीक न्यूक्लियोफाइल. लास्टली क्या याद रखना पता है? लास्टली ये याद रखना है, ग्रुप में साइज देखते हैं. ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो लार्ज साइज गुड न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो गुड न्यूक्लियोफाइल. अब तुमको इसे कैसे याद रखना है ये तुम्हारे पे है. ठीक है, अब ये लेकिन यही है कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो अफेक्टेड बाय स्टेरिक इफेक्ट. इफ स्टेरिक हिंडेंस इज मोर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज लो, क्योंकि अटैक नहीं ना कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल, जुड़ नहीं पाएगा. स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, इधर से अटैक करेगा कि इधर से अटैक करेगा. न्यूक्लियोफिली अब हम लोग SN1 SN2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अटैक कहाँ से करता है, बैक साइड से, अपोजिट साइड से, सेम साइड से. तो अटैक में भी डिपेंड करता है रेट. तो रेट को भी रेट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, and these are the notes points you have to remember. Okay, now what is the trick? Trick is that firstly you have to what? Find, listen, right? Trick for, now we are going to discuss trick for nucleophilicity. First step, नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होगा न्यूट्रल चार्ज से. न्यूट्रल चार्ज. ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? साइज चेक करना है. सेकेंड स्टेप अगर En है, मतलब En किस में चेक करते हैं? पीरियड में. अगर पीरियड का बात आ रहा होगा तो En चेक करेंगे, तो मतलब En कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी
ज्यादा, ठीक है। थर्ड में अगर साइज चेक करना है, साइज कब, जब ग्रुप कब आता है तो साइज ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, है ना। लास्टली क्या करना है, लास्टली कौन सा बात करना है, लेस स्टेबल नेगेटिव। देखो हमने बताया था फर्स्ट स्टेप, लेकिन इसको हमेशा लेस स्टेप में चेक करोगे तो आंसर अच्छा आएगा, ज्यादा सही आएगा। लेस स्टेबल नेगेटिव, मोर nucleophilicity. Okay, this is the trick. 4 step, only 4 step you have to remember. Okay, now just solve one question. Just solve this question. CS3 O CS2 O minus is the first. Second, you have to find the nucleophilicity order. Third, CS3 O minus, and fourth, CS3 CS2 S minus. You have to find the order of nucleophilicity. How will you find? Firstly, what we have to remember, firstly check the नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल से ज्यादा होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल से ज्यादा होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कौन सा है इसमें, ये सारा नेगेटिव चार्ज है। अब सारा नेगेटिव चार्ज है तो अब क्या करूं, ओ पे है, ओ माइनस पे, ओ माइनस पे, एस माइनस पे है। देखो ये एस माइनस पे है, तो अब क्या चीज चेक करना है, अब ओल्ड स्टाइल से, लेकिन ये हमारा ग्रुप में आ रहा है, तो ग्रुप में क्या देखेंगे, साइज, साइज देखते हैं, साइज, साइज में साइज ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिस ज्यादा, तो ऑक्सीजन सल्फर का साइज क्या जाता, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, तो फोर्थ पहले आ जाएगा, है ना। अब लास्टली, अब देखो, अब सब में क्या है, ओ माइनस है, ओ माइनस, ओ माइनस, अब इसको अलग कर दो, ये तो हो गया अपना। अब 1 2 3 में कौन आएगा, अब एक क्वेश्चन बता रही, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 में क्या आएगा, यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, यहाँ पे ये बताया हूं मैं, माइनस आई लग रहा है, ठीक है। अब लास्टली अब ये स्टेबिलिटी पे देख रहा है, अब स्टेबिलिटी पे ये माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई, लेकिन थोड़ा कम, ये थोड़ा लास्ट में आता था ना पीएच वाला, तो ये थोड़ा सा कम होगा, सॉरी ये CS2, ठीक है। तरीका देखो कैसे करते हैं, अब जो पहले पढ़ा वही काम आएगा। CS3 क्या करता है, माइनस आई लगाता है, प्लस आई लगाता है, ठीक है। ये प्लस माइनस आई ये ज्यादा लगा रहा है, जाके माइनस आई ऑर्डर देखो उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा माइनस आई मतलब माइनस माइनस वाले को ज्यादा, माइनस माइनस वाले को क्या करेगा, जब माइनस आई ज्यादा लगा रहा है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस वाला क्या होता है, भिखारी होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे और ज्यादा निगेटिविटी आएगा, और निगेटिविटी जितना आएगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, है ना। तो अनस्टेबल होगा तो वन सबसे पीछे, लेकिन यहाँ पे माइनस आई कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, तो अनस्टेबिलिटी कम लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल नेगेटिव, मोर न्यूक्लियोफाइल, आई एम जस्ट टेलिंग द स्टेबिलिटी ओनली, both we have to compare, okay, then we will got the answer. Oh, CS3 O minus, listen, you have to compare stability, which is more stable, which is less stable negative is more nucleophile, which is less stable, ये माइनस आई लगा रहा है, तो मैं बोला था भाई भाई को स्टेबल करता है, तो यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल मतलब क्या होता है, सॉरी ये लेस स्टेबल है ना, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल नेगेटिव इज मोर नेगेटिव, ठीक है, सॉरी मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो 3 आ गया पहले, ठीक है। अब ये लेस स्टेबल है, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला माइनस आई थोड़ा कम लग रहा है, इसका माइनस ज्यादा लगा, ज्यादा स्टेबल करेगा, तो ये मोर स्टेबल है,
ठीक है, ये लेस स्टेबल है, तो कौन आ जाएगा 1, उसके बाद 2। ओके, तो दिस इज द आंसर। इन द सेम वे we have to do all the examples I have written there. Okay, if you do all these examples, then you are very, these are the topic based, these are topic based, and these are fundamental, you have to experienced on this example. Okay, now I have to discuss G question. G, firstly, what we have to check, size, less size or more size. लेस साइज, ऑफ कोर्स लेस साइज में सबसे O माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस, S माइनस, तो इसका साइज कम है, तो जिसका साइज कम है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगा, उसका साइज कम मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जा रहा है। ठीक है, अब कार्बन, कार्बन और सल्फर, कार्बन कार्बन और सल्फर वाले में क्या होता है, सल्फर का साइज सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसको भी साइज से देख रहे हैं सारे को, लेकिन इस दोनों में क्या लोचा है, इस दोनों में कार्बन पे ही है, तो इसमें स्टेबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पे CC(X5) ये स्टेबल कर रहा है, स्टेबिलिटी कर रहा है, इसका ज्यादा स्टेबल है, ये भी इसका ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये स्टेबल हो रहा है दोनों, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज किसका है, दिस इज मोर स्टेबल। ओके, दिस इज लेस स्टेबल। Okay, we have to find this type questions, and you will better by practicing. Now this also given to you, you can solve. Now living group, living group is it is a species that departs with the bounded pair of electron, ये हमेशा बाउंडेड, जहां इसको जोड़ा मिल गया वहां वो निकल लेगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप क्या करता है, लिविंग ग्रुप नाम ही से छोड़ के जाता है। ठीक है, देखो लिविंग ग्रुप इज द एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जितना, देखो लिविंग ग्रुप जो बन रहा है ना यहाँ पे स्टेबल अनायन बनना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल, मस्ट बी स्टेबल, तभी तो ये लिव करके भागेगा, लिव करेगा। ठीक है, तभी तो ये लिव करेगा, ताकि देखो कोई भी आदमी तभी स्टेबल होने के लिए जाता है, मतलब लिव तभी होता है जब वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो अपना अनायन जो बनेगा वो स्टेबिलिटी स्टेबल अनायन बनना चाहिए था। ठीक है, जो वीक बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अनायन ऑफ, देखो इसका अप्रोच चाहिए, अनायन जो बन रहा है ना, जो भी लिविंग ग्रुप दिया हुआ है उसको हाइड्रोजन दे दो और एसडी कैरेक्टर फाइंड कर दो, एसडी कैरेक्टर इज द लिविंग नेचर, मोर एसिडिक गुड लिविंग नेचर। ओके, साइज बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ता है, साइज बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ेगा। ईएन, स्टेबिलिटी ऑफ ईएन बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा, सॉरी ईएन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा, इसीलिए ईएन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ रहा है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ेगा। तो जनरली क्या होता है ये याद रखो। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है एसडी का स्ट्रेंथ का करेक्टर ढूंढ लो कभी कभी, वो भी फाइंड करने के लिए आता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देख रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, दो जगह रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे दो जगह रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई लग जा रहा है, देखो CS3 का यहाँ पे माइनस आई लग जा रहा है। सो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे एक रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ दो बार रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है तो इसका थोड़ा सा कम होगा, फिर ये प्लस आई लगा रहा है, यहाँ कम होगा, सबसे कम। ठीक है, यहाँ माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे प्लस एच लग रहा है तो ज्यादा ही होगा, आपको कुछ नहीं लग रहा है तो उससे कम होगा, उससे अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो मैं वही बोला कि जो स्टेबिलिटी देखना है ना एसडी के लिए, अब Cl माइनस का कैसे पता चलेगा, अचानक तुम्हें दे देगा Cl माइनस और इतना में तो बताओ लिविंग ग्रुप क्या होता है, तुम कैसे बताएगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ ना समझ में आया तो हाइड्रोजन देना है, एसिड बनाना है और देन कंपेयर इट एसडी करेक्टर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द लिविंग ग्रुप। And now the onwards lecture we will going to discuss nucleophilic substitution reaction produced two different mechanism SN1 and SN2, and we will further going to discuss in separate lecture of SN1 and SN2. This was a small lecture, and
I hope you have clear all the doubts, and once you take a screenshot of this, okay, and solve questions of nucleophilicity and living group, you will realize you are going to be rock in this organic chemistry. Okay, now we are going to end this lecture. Thank you. Okay, everyone.